Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, every petition under the Hindu Marriage Act 1955 shall be presented to the High Court, Sessions Court, District Court, or all of the above. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत प्रत्येक याचिका को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय या उपर्युक्त सभी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिला न्यायालय. Section 19 of the Hindu Marriage Act 1955 deals with the court to which petition shall be presented. Every petition under this act shall be presented to the district court within the local limits of whose ordinary original civil jurisdiction the marriage was solemnized, or the respondent at the time of the presentation of the petition resides, or the parties to the marriage last resided together, or in case the wife is the petitioner where she is residing on the date of presentation of the petition, or the petitioner is residing at the time of the presentation of the petition in a case where the respondent is, at that time, residing outside the territories to which this act extends, or has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of him if he were alive. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 उस न्यायालय से संबंधित है जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी. इस अधिनियम के तहत प्रत्येक याचिका उस जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी जिसके सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर विवाह संपन्न हुआ, या प्रतिवादी याचिका की प्रस्तुति के समय निवास करता है, या विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहते थे, या यदि पत्नी याचिका करता है तो यह याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर वहां रह रही है, या ऐसे परिदृश्य में जहां याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के समय निवास कर रहा है और प्रतिवादी या तो इस कानून के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से बाहर रह रहा है, या 7 वर्ष या उससे अधिक समय से उसके जीवित होने के बारे में उन व्यक्तियों को कोई सूचना नहीं है जिन्हें स्वाभाविक रूप ज्ञात होता यदि वह जीवित होता, उस पर कुछ कानूनी प्रक्रियाएं या प्रावधान लागू हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन is not a requirement for a valid gift under the Transfer of Property Act. Acceptance by the donee, registration of the gift deed, intention to gift by the donor, or transfer of ownership by the donor to the donee. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत वैध उपहार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति, उपहार विलेख का पंजीकरण, दाता द्वारा उपहार देने का इरादा, या दाता द्वारा प्राप्तकर्ता को स्वामित्व का हस्तांतरण. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द गिफ्ट डीड. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपहार विलेख का पंजीकरण. Section 122 to Section 129 contained in Chapter 7th of Transfer of Property Act 1882 deals with gifts. According to the Transfer of Property Act, for a gift to be valid, 3 essential elements must be present: intention to gift by the donor, acceptance of the gift by the donee, and transfer of ownership from the donor to the donee. Registration of the gift deed is not a mandatory requirement for the validity of the gift. However, Section 17 of the Indian Registration Act 1908 makes the registration of a gift deed mandatory. However, if the gift is of immovable property, it should be registered to make it enforceable against others and to avoid any disputes regarding ownership in the future. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अध्याय 7 में निहित धारा 122 से धारा 129 उपहारों से संबंधित है. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार किसी उपहार के वैध होने के लिए 3 आवश्यक तत्व मौजूद होने चाहिए: दाता द्वारा उपहार देने का इरादा, प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार की स्वीकृति, और दाता से प्राप्तकर्ता को स्वामित्व का हस्तांतरण. उपहार की वैधता के लिए उपहार विलेख का पंजीकरण अनिवार्य आवश्यकता नहीं है. हालांकि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 उपहार विलेख के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है. हालांकि यदि उपहार अचल संपत्ति का है तो इसे दूसरों के खिलाफ लागू करने योग्य बनाने और भविष्य में स्वामित्व के संबंध में किसी भी विवाद से बचने के लिए पंजीकृत किया जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of the Indian Evidence Act deals with the admission of electronic records as evidence? Section 59, Section 65A, Section 65B और Section 65C. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से संबंधित है? धारा 59, धारा 65A, धारा 65B या धारा 65C? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 65B. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 65B.
Section 65B of the Indian Evidence Act 1872 deals specifically with the admissibility of electronic records as evidence in court. According to this section, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded, or copied in optical or magnetic media produced by a computer shall be deemed to be a document. However, for such electronic evidence to be admissible, it must fulfill certain conditions under subsections 1 and 2 of Section 65B. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65B विशेष रूप से न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित है। इस धारा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मौजूद कोई भी जानकारी जो किसी कागज पर मुद्रित, संग्रहित, रिकॉर्ड की गई या कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या चुंबकीय मीडिया में कॉपी की गई हो, एक दस्तावेज मानी जाएगी। हालांकि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार्य होने के लिए उसे धारा 65B की उपधारा 1 और 2 के तहत कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट? क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13, क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13, क्लॉज 1A ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 और सेक्शन 13B। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपसी सहमति से तलाक से संबंधित है? धारा 13 की उपधारा 1 खंड 3, धारा 13 की उपधारा 1 खंड 1, धारा 13 की उपधारा 1 खंड 1A या धारा 13B। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 13B। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 13B। Divorce by mutual consent is a legal provision under the Hindu Marriage Act 1955 which allows the married couple to dissolve their marriage by mutual agreement. This provision is governed by section 13B of the Hindu Marriage Act. For a divorce by mutual consent, both parties must jointly move a petition before the court stating that they have been living separately for a period of 1 year or more and they have not been able to live together as husband and wife. They must also declare that they have mutually agreed to dissolve the marriage. आपसी सहमति से तलाक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक कानूनी प्रावधान है जो एक विवाहित जोड़े को आपसी सहमति से अपने विवाह संबंध को खत्म करने की अनुमति देता है। यह प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B द्वारा शासित है। आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करनी होगी जिसमें कहा गया हो कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं और वे पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें यह भी घोषित करना होगा कि वे विवाह को समाप्त करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज A intentionally causes Z's death partly by illegally omitting to give Z food and partly by beating Z. A is liable for murder by virtue of which section of IPC? Section 36, Section 37, Section 34 और Section 35। A जानबूझकर Z की मृत्यु का कारण बनता है, अंशतः Z को भोजन देने में अवैध रूप से चूक करके और अंशतः Z की पिटाई करके। A IPC की किस धारा के आधार पर हत्या के लिए उत्तरदायी है? धारा 36, धारा 37, धारा 34 या धारा 35? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 36। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 36। Section 36 of the Indian Penal Code 1860 talks about effect caused partly by act and partly by omission. Wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. A intentionally causes Z's death partly by illegally omitting to give Z food and partly by beating Z. A has committed murder. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 36 अंशतः कार्य और अंशतः चूक के कारण होने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करती है। जहां भी कोई निश्चित प्रभाव उत्पन्न करना या किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा उस प्रभाव को उत्पन्न करने का प्रयास करना अपराध है, वहां यह समझा जाना चाहिए कि उस प्रभाव को अंशतः किसी कार्य द्वारा और अंशतः किसी लोप द्वारा उत्पन्न करना एक ही अपराध है। ये जानबूझकर Z की मृत्यु का कारण बनता है, अंशतः Z को भोजन देने में अवैध रूप से चूक करके और अंशतः Z की पिटाई करके A ने हत्या की है। Before we wrap up, here's a question for you. In which of the following cases it was held that telephone tapping is an invasion of right to privacy? PUCL versus Union of India, State of Maharashtra versus Murli S. Diora, Govind versus State of Madhya Pradesh और Mr. X versus Hospital Z? निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना गया कि टेलीफोन टैपिंग निजता के अधिकार का हनन है? PUCL बनाम भारत संघ, महाराष्ट्र राज्य बनाम मुरली एस देवड़ा, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य या मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा।
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।